Okay. Good morning, Asutosh. Good morning, sir. Okay, so those who will watch this video, आशुतोष 2023 में असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई हुए। इनका 85th रैंक था। फॉर्चुनेटली इंटरव्यू में इनका हाईएस्ट मार्क्स था और कहीं ना कहीं इंटरव्यू के कारण इनका अच्छा रैंक आया। और इनकी चॉइस जो थी, फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ, सेकंड चॉइस सीआरपीएफ। अनफॉर्चुनेटली हिज फादर इज आल्सो सर्विंग इन सीआरपीएफ, सो फादर and son both now in same organization. ओके, सो इनसे जो भी कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, ऑब्वियसली मैं ड्यूरिंग इनसे जो प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन एक आप लोग जो भी 24 में इंटरव्यू अपियर 24 का इंटरव्यू अपियर होने वाले हो या 25 में आप एग्जाम दोगे, तो एक जर्नी इनका जो रहा है उसके संबंध में हम कुछ चीजें बात करेंगे। ओके आशुतोष, सबसे पहले ये बताओ कि आपकी जर्नी एज ए मुझे यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना है, ये कब आपने सीरियसली सोचा? सर, मैं चाहूंगा कि मैं एक आध क्वेश्चन इंग्लिश में आंसर दे दूं यस यस श्योर। कि ताकि जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको यस लगे कि इंग्लिश में इस बंदे ने कैसा आंसर दिया होगा कि इसको 126 मार्क्स आए, है ना। यस तो श्योर बहुत श्योर। yeah. So I thought about joining the forces when I was in 11th class. So I gave my first attempt in NDA and the second attempt in NDA. I was not able to qualify. But during my engineering days, uh, in my sixth semester, in between my sixth and seventh semester, I was completely sure that I want to join CRPF and or CAPFs as an assistant commandant. And there itself, I think I didn't even started my seventh semester and gave my first attempt of the CAPF examination. And after giving the exam, I was pretty sure that this is the kind of examination that I can clear. And I already knew about the forces, the all the CAPF, so I was pretty sure that I would do much well in specifically in CAPFs as compared to defense sectors. So in 2019, I gave my first attempt. In 2020, again, I just finished my final year and then I gave another attempt. And it kept on going until I was selected in my 2023 attempt. Okay, so you said you started preparing from last year itself when you were in seventh semester. In spite of all preparation, obviously, in objective question in first paper there is uncertainty. So were you lacking every time in paper one itself? Yes, sir. The thing is, when I gave my first and second attempt, I was just there in my college year itself. So there was no kind of preparation. It was just for testing how the exams are going. Other than that, my 21 attempt was during the COVID time when I was also doing, I was a software engineer at an MNC company. So it was pretty difficult for me to concentrate either on paper one or paper two. But in my 22 attempt, I was lacking in paper one. I missed the cutoff by around 2 marks. But after that, when I resigned in June 2022, I gave around 12 to 14 months of preparation, continuous preparation, 10 to 12 hours a day. And within 14 minutes, after 14 months, I gave other attempt in 23 and I cleared that exam. So I was lacking in paper one and paper two, everything. Okay, but still your paper one cutoff just marks is on cutoff. Don't you think Yes, luck sir. matter there? Yeah, that's what, because that is the thing, you're correct here. So that just because I am giving advice, that doesn't make me smarter than the other aspirant. That just tells that I have done more mistakes and I have failed more times than them, right? So in paper one, it was difficult for me. Okay, so what difficulty you faced? Because you said ki you left the job itself, private sector job for this preparation itself. Your paper two marks is good, 93 marks, so 90 plus any marks is good enough, and obviously interview you are highest. So where you are missing in paper one for so many years? So the thing is, there is a kind of mentality in between the balance of paper one and paper two that oh, I should score 170, 118 paper one, and paper two is so unpredictable that I'll catch up the overall cutoff using paper one. So that is the mentality that kept me on a back step, because what the thing is, paper two is not unpredictable. Paper two is fixed. Paper one is unpredictable.
So when I appeared in my 22 attempt, my expectation was 185, 190 marks, and I scored 132.4. When I appeared in 23rd attempt, there my expectation was 170, 175, and I scored 119. Because in UPSC, the paper, objective paper is so unpredictable. The subjects are so, in CAPF compared to CSC, it is somewhat fixed the number of questions, but still, in 2024, I've seen people who scored 150, 160 in paper in last year. They haven't crossed 80, 84, 85 this year. So that is the thing about the complete balance of paper. The aspirant should focus on scoring better in paper two, and paper one is just to keep them in the race, just to get their foot inside the physical, medical, and interview race. That's the thing they need to understand. Yes, so in 21 and 22, so many candidates got higher marks in paper one, but 23, many people got very less marks. Still, they were able to manage the things. And in 24 also, since vacancy is highest in couple of years. Anyway, all eyes will be on your interview marks. So yes, I know the journey and all, but you say how your journey was during interview preparation. Sir, my preparation, I guess my interview preparation started with joining your classes itself. And if an aspirant have a question that why, like, what helped me to score 126 marks in the interview, then I would ask you a question that the day when I joined your classes, could you name me one candidate or one aspirant who was more active than me, who asked more questions than me, who asked more foolish questions than me, and who was 100% regular in your classes? Could you name me one aspirant? Yes, obviously you were more curious. From background, some candidates were working so hard, but you were one who was the most active. And one more interesting thing, you are the person who said, sir, if you are in Patna, I will come to you. I want to meet you physically. But at that time, I was in Bangalore, so was not able to meet you. Some candidates obviously are serious. Means many candidates are serious, but you were attending all the classes, all the sessions, and also asking question and all. And this is the same thing, what you said, what you asked, I say the same thing. The more you are active, the better it is. Interview is nothing like you will cram, you will memorize. And obviously, I have no answer key. Someone was better than you in terms Just of. a hypothetical question, sir. Yeah. Yes, so yes, tell the aspirants or share what a strategy you applied. With respect to interview itself, Yes. I don't think most of the people want to take advice on me from paper two, right? Yes. So, So first interview regarding interviews. So obviously many will be interested in interview itself. yeah, I'll tell you a few. I'll tell all the aspirants a few things. Firstly, is that interview is about two things: is what kind of person you are, and how you are able to handle a conversation. Those are the two things. Okay, and that does not include English fluency, because my English is not as fluent as other many candidates. So the first thing is what I said is that what kind of person you are. That means what kind of experience and what kind of knowledge you have. So if a person is appearing in the interview, anyone who is watching this video, then there is a benchmark marks that has been set. When I was appearing in the interview, I knew that I was going to get 110. I was pretty sure 110. I have that kind of experience, I have that kind of knowledge, I have that kind of skills, that 110 is sure. Now the point is how I need to increase that 100 to 120 and 130, even if I was able to get that. So that is the one thing. And how you're able to handle a conversation. There, they will not test anything about your knowledge. My interview was everything about my DAF, about my village. I never lived in my village. Even then, they asked 4 questions on that. And they were asking many questions related to my education, but there was no specific question about CAPFs, or some question was related to international relation. I'll tell you one incident.
I was sitting outside the interview room, and I was looking at the clock. It was 4:30. Before looking at the clock, I was memorizing. Okay, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. How would I greet them? And I'm practicing this good morning from past 3 years. Okay, when I'll get a chance to say good morning. And when I was about to enter the room, I saw the clock and it was 4:30, and I realized it is good evening. So when I entered the room, sir told the chairman, sir, he told me, good afternoon, Ashutosh. And he just gave me a gesture like this, sit down. So he didn't say sit down, just told good afternoon, Ashutosh. And I was standing there and I said, good evening, sir. So the entire panel started laughing. ओके ओके शाम हो गई अरे पता ही नहीं चला है ना तो मैंने बोला यस सर इट इज इवनिंग सो देयर इटसेल्फ दे न्यू who like what kind of presence of mind this person has. And after that again he said, Ashutosh, please take a seat. When he directed me, then only I took a seat. So this is the kind of thing that they are saying. Another thing is voice modulation. So right now I'm speaking in a higher tone. So there are two things: a person talks from his mouth and a person talks from his diaphragm. Right now I'm talking from my diaphragm. और अगर मेरे को मुंह से बात करनी है तो मेरा आवाज इस तरीके का रहेगा जिस तरीके से मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को डायफ्राम से बात करना है तो थोड़ा सा हैवी वॉइस हो जाएगा. सो दैट इज when you're talking from the diaphragm, you're directing your voice to other person, and it is showing all the interview members that you're active, you're talking to everyone, and you're not just there giving answers. You want to talk to them, you want to generate curiosity with them. So that is some of the things that they see. And at the end, when it comes about uh, knowledge, it is just that there is a saying that you're not nervous, you're just unprepared, right? So if you have studied enough, if you know very that, like you taught me to learn each and every line about death, each and every line. When you asked me about that question regarding Shiv Bhagwan, because my name was Ashutosh, and you started asking me a question about tell me a story, five stories, or a particular story about Shiv Bhagwan. So I was stuck by that question, and that created a curiosity in me that how deep a question can go, right? So that I found it out during my interview that they were starting to ask question. I used that manipulation to trigger them to ask me such question. When they asked me about Mokama Ghat, I purposefully mentioned about Rajendra Bridge. So they asked me next question about Rajendra Bridge, and I knew about it. Then when they asked me about Rajendra Bridge, I purposefully mentioned Vishwesharaya sir because I studied from BTU. So I studied about him. So again they asked me a question about Vishwesharaya. So that is how you need to create curiosity and try to answer the questions. Okay, so this is the time ki so many aspirants are preparing. See, as a teacher, as a mentor, I will not say, and every time I say, ki obviously, if you are willing, if you are thinking that I will be helpful or some mentor will be helpful, then and only then join any program. But as a candidate who passed through that phase, do you think ki obviously not only mock interview, just some classes are also required so that a candidate should get regular touch, should get regular opportunity to speak, to ask question and all? What is your opinion? Definitely, I would, from my whole heart, I would say that the kind of teaching methodology that you use is something different other than what other interview teachers are using. Because अब मैं जैसे अपना बताऊंगा तो मेरे को इंटरव्यू के का हेल्प उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना मेरे को उन क्लासेस का हुआ. क्योंकि इंटरव्यू में क्या है कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरे को अभी अभी भी अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तभी मेरे को सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है ना. सेम चीज इंटरव्यू में होता है कि हमने बहुत कुछ प्लान करके गए. मेरा दिमाग अभी अभी मैं इधर बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये लग रहा है कि हाँ ये सिर्फ बात कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है. बैकग्राउंड में कॉन्टैक्ट है, हेड मूवमेंट है, शोल्डर है. एक बार झुक गया था तब मैंने अपने आप को याद दिलाया आशा आ जाए. फिर मैं धीरे 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 तो इतने सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है.
तो ये चीज़ें इंटरव्यू में मैं नर्वस हो जाता था। लेकिन आपने जो इंटरव्यू से पहले रेगुलर हर एक डे के इंटरव्यू में जो क्लासेस लेते थे उसमें मैं कंटिन्यूसली, वहाँ मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि यार जितने भी क्लासेस सर लेंगे ना, उसमें मैं जितना हो सके उतना बोलूँगा। क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट किया दिसंबर के आसपास, तो क्या हुआ कि मैंने एक यूट्यूब इंटरव्यू खोला और उसने क्वेश्चन पूछा, मैंने वीडियो पॉज किया और मैंने सोचा कि मैं आंसर दूंगा, एंड आई वाज स्टक। मेरे मुंह से जितनी इंग्लिश और जितनी हिंदी अभी निकल रही है कुछ नहीं निकला, मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या बोलना है। क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि 3-4 साल से मैं घर में बैठा हूँ, मैं ना बाहर जा रहा हूँ, ना किसी से बात कर रहा हूँ, ना इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से तो आदमी स्टक हो जाएगा ना। तो जब बहुत सारे क्लासेस होते हैं इंटरव्यू से पहले, जैसे आपने लिए, तो उसमें मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था। मैंने आपको एक दिन खुद सामने से बोला था, जिस क्लास में आपने बहुत लंबा क्लास ले लिया था, तो मैंने आपको बोला था सामने से कि सर आपसे ज्यादा आप हमें बोलने दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू हम लोग का है। तो वो सब ताकि हम लोग सीखें कि बोलना कैसे है, रादर देन आप ही हमको सिखाते रहो, है कि नहीं? क्योंकि नॉलेज तो हम लोग हर जगह से ले लेंगे। यस यस। सो एवरी टाइम ऑब्वियसली आई ट्राई कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इवन इफ 1 मिनट का ही टाइम मिले और बोलो, और रेदर देन खुद अपॉर्चुनिटी तलाश करो। जैसे आपने बोला ना कि बोला कि सर मुझे बोलने दीजिए या हम लोग को बोलने दीजिए, तो मैं आज भी यही चीजें बोलता हूँ जहाँ पॉसिबल होता है कि यस, जहां आपको ऑप्शन मिले, 1 मिनट का मिले, 1 मिनट ही बोलो, 1 मिनट में ही क्वेश्चन पूछो। सो जैसे ठीक है, आपने जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बोला ये था कि सर शायद इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, इसके कारण मेरा रैंक इतना अच्छा आया। लेकिन ऑब्वियसली तब ये नहीं पता था कि 23 वाले बैच में आपका हाईएस्ट है। सो एनीवे, जैसे आपने बोला कि हम 110 के प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टेक 110 मेरा कम से कम आ जाएगा, जो हमारी प्रिपरेशन है। बट मार्क्स देखने के पहले, जब तक मार्क्स नहीं आया था, तो कितने आपको एक्सपेक्टेशन था कि इतने आए होंगे? एक्सपेक्टेशन सर अराउंड 110 प्लस तो मेरा श्योर था। उसके आगे बताना बहुत ही मुश्किल रहता है कि कितना मार्क्स एक्सपेक्टेड रहे, क्योंकि पेपर वन मुझे लगा नहीं था कि 130 के नीचे मेरे चला जाएगा। लेकिन वही बोला कि पेपर वन बहुत ज़्यादा मैं एक मेंटालिटी यूज करता हूँ ना कि आई ट्राई टू बी हम्बल नार्सिसिस्ट। इसका मतलब ये है कि मैं दूसरों को बताऊंगा कि मेरे को कुछ नहीं आता, और इंटरव्यू में भी मैं ऐसा एक्ट करूंगा क्लासेस में कि हाँ मैं सीख रहा हूँ सबसे, लेकिन मेरे को अंदर पता है कि आई एम द बेस्ट। तो इंटरव्यू में 130 तक मैं जब निकला था, आपने मेरे को बताया था कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो जरूरी नहीं है 130 मिल जाएगा, लेकिन टारगेट लेके चलना है ना। जब मैं ही टारगेट नहीं रखूंगा, जब मेरे को ही बिलीव नहीं है कि मैं 130 ला सकता हूँ, तो सामने वाला किस लिए देगा? है कि नहीं? तो यस यस टारगेट 130 का ही था। यस। देखो, जब एक तरह से 2020 तक वाले बैच में देखो, तो हाईएस्ट 113 हुआ करता था। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जो हाईएस्ट है, भले हमारा नहीं आएगा, लेकिन हमको टारगेट रखना है हाईएस्ट का। 21 में हाईएस्ट जो है 120 रहा। मैंने बोला आप ऑब्वियसली अब आपको 113 का ब्रेक जो है वो टूट गया है, वो जो उसका बाउंड था। अब 120, फिर देखो 22 में 130 चला गया। तो यदि 130 मिला है तो ऑब्वियसली बात है वी कैन एस्पायर फॉर दैट। तो ऑब्वियसली आपने वो ट्राई किया, अनफॉर्चुनेट इनफ। जैसे देखो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, एक दो ऐसे जिनके 118, 122, वन ऑफ माय स्टूडेंट हु गोट 122, इन स्पाइट ऑफ सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से कि उनका एकदम बॉर्डर पे, कट ऑफ पे है। तो वो भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप अच्छा करते हो इंटरव्यू में, अभी भी आपको उन कैंडिडेट्स के लिए क्या मैसेज है जो अभी 24 वाले बैच में इंटरव्यू में अपियर होने वाले हैं, मई में, परहैप्स मई एंड जून में? अब और 2025 सर। 24 वाले जो है 25 में अपियर होंगे ना इंटरव्यू में अभी? हाँ सर। सो इसमें देखिए, सबसे पहला चीज तो टारगेट के रिगार्डिंग आता है ना। अब मेरे पास 3-4 डायरीज रखी हुई है, यहाँ भी है। हर डायरी के किसी पेज में एक ही चीज लिखा हुआ है, आशुतोष आनंद, यूपीएससी सीएपीएफ ऑल इंडिया रैंक वन। यस कोई भी आदमी रैंक वन का टारगेट सोचता है कि यार जिसका रैंक वन आया होगा वो सर भी सोचते होंगे कि यार मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन मैं टारगेट ही ऑल इंडिया रैंक वन का लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा 40-50 के आसपास आएगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि मेरा 40-50 के आसपास आएगा, तो मैं वो टारगेट रखता हूँ तो मेरा 100 के आसपास आएगा, है ना? तो इस हिसाब से मैंने ये सोचा था कि
अगर मेरे को 40-45 के आसपास लाना है तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 का टारगेट लेके चलूंगा। उसमें ऐसा नहीं है कि यार कोई एस्पिरेंट अगर है तो वो सोच रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना यार, ये ऑल इंडिया रैंक 1 तो बहुत रेयर चीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 लिखा तो मैं इंटरव्यू में ऑल इंडिया रैंक 1 लाया। तो जब हो जाता है इट ओनली फील्स डिफिकल्ट इम्पॉसिबल टिल इट्स डन, है ना। तो इन लोगों को सबसे पहले तो टारगेट ऊपर सेट करना पड़ेगा, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल दे स्टार्टेड बिलीविंग इन देमसेल्फ, तब तक सामने वाला कैसे बिलीव करेगा। और जितने भी लोग 23, कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो 23 में मेरिट आउट हो गए हैं और 24 में मेडिकल आउट हो गए हैं, कि नहीं, काफी लोग अभी 25 में, अभी जो 24 का इंटरव्यू होगा उसमें भी काफी लोग मेरिट आउट होंगे और फिर 25 के लिए अपीयर होंगे। तो देखिए, मैं ज्यादा एडवाइस तो दे नहीं सकता क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका डिफरेंट है और सबकी सिचुएशंस अलग है। जैसे अगर मेरी बात करेंगे तो मेरे को सिर्फ बैठ के पढ़ना था, मेरा कोई स्ट्रगल था नहीं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ बहुत स्ट्रगल रहता है उनके पढ़ने के लिए। मेरे को तो मतलब मेरा स्ट्रगल मेरी फैमिली ने किया है, मेरे बड़े भाई ने किया है, मेरे छोटे भाई ने किया है, मेरी मम्मी, मेरे पापा। मतलब मेरे पापा तो मेरे को बाहर मार्केट भी नहीं जाने देते, बोलते तू बैठ के पढ़, मैं दूध लेके आता हूँ, है ना। तो मेरे पापा सुबह शाम मेरे लिए चाय लेके ऊपर आ जाते कि अच्छा पढ़ रहा है ना, तेरे को नौकरी नहीं करनी, मत कर, पैसे चाहिए मैं दूंगा। मेरा बड़ा भाई बोलता तेरे को जितना पैसा चाहिए बोल, तेरे को जितने बुक्स खरीदने खरीद, तेरे को कौन सा फोन चाहिए, कौन सा लैपटॉप चाहिए ले ले, तो बस तू पढ़ बैठ के। तो मैं उन लोग ये एडवाइस करूंगा कि तुम लोग जिनके पास ये सब चीजें हैं, वो बिना मतलब के उस चीज को स्ट्रगल मत सोचो। तुमको बैठ के 10-12 घंटा पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। खाने को खाना है, पढ़ने के लिए किताब है, फोन है, लैपटॉप है, वाईफाई, ये बैठ के बस पढ़ो 10-12 घंटा, 12 आवर्स अ डे, 10 आवर्स अ डे, दो बैठ के। क्योंकि एक ये वाला मेंटालिटी नहीं है कि मैं तो बैक बेंचर हूँ, टॉपर तो इतना घंटे साल भर पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 1 ले आया और मैं तो 97% ले आया और मैं तो रात भर पढ़ में 83 ले आया। कौन पूछ रहा है कितना पढ़ा, है ना। मेरे को जब मेरे कॉलेज वाले क्लासमेट्स देखते थे तो बोलते थे यार ये तो दिन भर पढ़ता ही रहता है ना, ये तो इंटर्नशिप के टाइम में भी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम ही पढ़ रहा है, ये तो ऐसे ही कर रहा है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि उतना मार्क्स लाने के लिए मेरा दिमाग कमजोर है तो मेरे को उतना पढ़ना पड़ेगा। किसी को 12 घंटा लगता है, किसी को 14 घंटा लगता है, किसी को 20 घंटा लगेगा, तो तुम पढ़ो बैठ के, है ना, रादर देन सोचना कि सामने वाला तो बहुत इजीली, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है या तो वो आईआईटी से है तो वो बहुत जल्दी कर लेगा। तो वैसा नहीं है। तो जितने भी लोग अभी इंटरव्यू में प्रिपेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव मेंटालिटी रखना है, हल्का सा नार्सिसिज्म रखना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, तभी पॉसिबल है। यस, ऑब्वियसली देखो, जो भी हमारे आए या ना आए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम बेस्ट एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन रखने के साथ साथ हमें मेहनत भी करना पड़ेगा। यदि हमने आपको बोला 130 का टारगेट रखना है, तो आपने 130 के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दिया और उतने वर्क किए, उतने मेहनत किए, तभी जा करके आया। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम सोच रहे हैं अच्छा 130 आ जाएगा और हम ना तो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ना तो अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्कस कर रहे हैं, ना तो चलो यू आर लकी इनफ कि एक इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली, या जो भी आप चाह रहे थे उसमें हो। आप कुछ और इंसाइट्स जो लगता है कि जो इंटरव्यू के ड्यूरेशन में, वो जो 25-30 मिनट्स आपका चला यूपीएससी में, उसमें कुछ यस सर। इंसाइट्स आप शेयर करो ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनके थोड़ा एक्सपीरियंस उनको मिल सके। ओके, सो फर्स्ट थिंग तो मैंने बता ही दिया कि हाउ यू हैंडल कॉन्वर्जेशन इज ऑल अबाउट इंटरव्यू, है ना। और दूसरी चीज ये थी कि कितना एक्टिव इंटरव्यू में मैं था, वो चीज। अब अच्छा, मैं कुछ चीजें ये बताता हूँ कि मैंने क्या ऐसा किया, ताकि क्योंकि लोग जो ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये उनका यही है कि मैं इस बंदे को जज करता हूँ कि यार ये बंदा कैसे 126 लाया, है ना। तो सबसे पहले तो मैं काफी एक्टिव था, मैं स्ट्रेट बैठा हुआ था। और एक चीज मैंने नोटिस किया कि एक ही क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं नहीं दे पाया। अब वो इतना इजी क्वेश्चन था कि मेरे को रूम से जब निकला तो मेरे को लगा कि अब मेरे को 120 पार नहीं करने वाला। लेकिन मेरे को तब समझ में आया कि क्यों उस गलत क्वेश्चन का भी मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिला हो, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया। जब सर ने पूछा कि व्हाट इज दिस, तो मैंने बोला सर कुड यू प्लीज रिपीट इट। तो उन्होंने फिर से रिपीट किया, सॉरी सर आई डिडंट गेट यू, कुड यू प्लीज रिपीट इट वंस अगेन, एंड ही स्पेल्ड इट आउट। Then I said, he was asking something about my village. So
then I didn't say, okay, sorry, sir, I don't know. I said, I do apologize for that, sir. I don't know the answer. Oh, it's okay, Ashutosh, you don't need to apologize. ये सबसे पहले वो ऐसे मेरे को डरा दिया है कि सर की, अरे तुमको नहीं पता यार, तुम मुकामा के हो, तुमको इतना सी बात नहीं पता। तो ही वाज ट्राइंग टू यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट। ही वाज सीइंग कि मैं कब बहानेबाजी करूंगा कि यार सर मैं तो वहां रहा ही नहीं, तो मेरे को कैसे पता। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला सर आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई विल डेफिनेटली रीड इट आउट। ओ आशुतोष, यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज, यू हैव नॉट लिव्ड देयर, सो इट्स ओके, है ना। सो वो सर चेक कर रहे थे कि मैं कभी ये बहाना मारूं कि मैं वहां पर नहीं रहा हूं तो मैं कैसे आंसर दे सकता हूँ। तो मैंने बहानेबाजी नहीं की। तो पहले चीज, एक और चीज है कि बहाने नहीं देने, और आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत क्वेश्चंस थे, वैगनार ग्रुप पे, ब्लैक वाटर पे, और ड्रोन सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक चीज मैंने देखा कि बोर्ड मेंबर्स ट्राई करते हैं ऐसे चीज पे सामने से ऑप्शंस देते, जैसे मेरे को उन्होंने ऑप्शन दिया कि आशुतोष, यू हैव डन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, टेल मी वन टेक्नोलॉजी दैट यू आर कंफर्टेबल, दैट यू आर गुड इन। तो सर ने खुद ही ऑप्शन दे दिया, तो मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला। अब उसी में सर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेशन में क्वेश्चन पूछ लिया, और बीच बीच में सर खड़े होके थोड़ा वॉक लेने लग गए। तो वो चेक करते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और मैंने एक चीज घर में प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन वहां जाके ऑटोमेटिकली हो गई ये चीज। मैंने आपके इंटरव्यू में भी एक बार आपसे पूछा था कि हेड मूवमेंट कैसे रखना है। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि जब मैं आंसर दे रहा था तो हर पॉइंट में चारों मेंबर्स की तरफ देख देख के बता रहा था। और एक चीज होता है ना कि एरोगेंस नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भले हल्का सा एरोगेंस दिखेगा, क्योंकि अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात चल रही है, लेकिन वहां पर एरोगेंस वो लोग पकड़ लेते हैं। और इसीलिए, और ज्यादा हम्बल भी नहीं रहना है, क्योंकि हम लोग फोर्स में जा रहे हैं, तो वॉइस हैवी रहना है। और सबसे बात करना है ऐसा, यू डोंट हैव टू मेक हिम फील लेफ्ट आउट ऑफ द कन्वर्सेशन, बिकॉज ही वॉज नॉट लुकिंग एट मी। सो ऐसा नहीं है कि इवन आई स्टॉप लुकिंग एट हिम, ओके यू स्टे देयर, आई विल स्टे, नो। सर को भी कन्वर्सेशन में लेना, यस सर ऐसे ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं, ऐसे ऐसे एडवांटेजेस हैं, यस सर, है ना। आई आई डू अपोलोजाइज, आई डोंट नो द आंसर सर, ऐसे करके। ये नहीं कि उसी को डायरेक्ट किया सर को, सबके साथ कन्वर्सेशन चल रहा है। तो बोला ना, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल अ कन्वर्सेशन। तो जो एक्सपीरियंस किसी का है, अगर कोई इंसान अभी इंटरव्यू, तुम में से कोई इंटरव्यू देने जा रहा है और वो स्टार्टिंग से ही इज अ बैड पर्सन, देन वो चीज वहां सामने आ ही जाएगा। तो देर इज समथिंग दैट एट दिस पॉइंट यू कांट चेंज, दैट इज एक्सपीरियंस, दैट यू कांट चेंज। द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, वहां पर पता चल ही जाएगा कि तुम कैसे पर्सन हो, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे पूछेंगे। अगर वो साइकोलॉजिकली तुम बहाने लगा रहे हो क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन को घुमा फिरा रहे हो, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, रादर देन टेलिंग कि नहीं मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। और इंटरव्यू मेंबर्स ऐसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है जिसका आंसर तुमको नहीं है, क्योंकि उनको तुमसे बात करनी है। वो ऐसा क्वेश्चन किस लिए पूछेंगे कि तुमको नहीं आता, वो जानबूझ करके पूछेंगे तुम्हारा गांव कैसा है, तुम्हारा घर कैसा है, मम्मी पापा क्या काम करते हो, क्योंकि दे वांट टू सी हाउ यू स्पीक, what kind of words do you use, how humble you are, how polite you are, how much knowledge do you have. So they will ask question जो तुमको आता ही होगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर को पूछ लेंगे जो नहीं आता, ठीक है सर नहीं आता, सब कुछ आना जरूरी थोड़ी है। तो वही चीजें हैं इंटरव्यू के लिए। यस आशुतोष, आपने ये बोला कि एक तरह से जब वहां जाना है तो ऐसा ना लगे कि हम बहुत बेचारा टाइप का फील कर रहे हैं, बिकॉज जो भी एग्जैक्ट कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो एटलीस्ट अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में 98.5% लोगों से कम बेटर हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, मेडिकली फिट हैं, और रिटेन क्वालिफाई करके गए हैं। तो हमें ये एटलीस्ट फील करना चाहिए कि सिलेक्शन ना सिलेक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज हमारे मार्क्स दोनों कंपोनेंट के पूरे होंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, यदि नहीं पूरा हुआ तो हम नहीं सेलेक्ट होंगे। लेकिन एटलीस्ट ये एक प्राउड फील होना चाहिए कि यस आई एम देयर, कि मैं यूपीएससी में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। एक चीजें देखो हमेशा होता है कि जैसे आपने बोला ना, देखो पर्सन रिजल्ट देखता है कि अच्छा इसके इतने मार्क्स आए, चाहे वो इंटरव्यू हो या टोटल हो, लेकिन उसके पीछे किसी का 2 साल का मेहनत होता है, किसी का 3 साल का मेहनत होता है, और किसी का सिर्फ कैंडिडेट का नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स का भी मेहनत होता है। जैसे आपने बोला कि आपके फादर ने बोला कि इवन चाय आपको पहुंचा रहे हैं रूम में, या कुछ भी नहीं करना है तुम्हें पढ़ाई करना है, तो वो उनके मेहनत भी काउंट हो रहे हैं। सो इन नॉर्मल एग्जैक्टली। आपको जस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 साल कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू के लिए भी किसी को कम से कम 3 महीने तो टाइम देना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? सर ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि अब जो 3 महीना जैसे सर आपने बताया, वो 3 महीना इस चीज पे वर्क करेगा कि इंटरव्यू में अपने आप को
प्रेजेंट कैसे करते हैं। 3 महीने में वो अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकता। यस और यस। 3 महीने पहले मैं जैसा था, क्योंकि द काइंड ऑफ पर्सन मैं हूँ, मैं वैसा ही रहूंगा, लेकिन जो कन्वर्जेशन स्किल्स हैं, कोई कोई ज्यादा ब्लिंक करता है, कोई ज्यादा हेड मूवमेंट करता है, कोई थोड़ा फास्ट बोलता है, जैसे सम पीपल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश देन दे स्टार्टेड ब्लैबरिंग अबाउट इट। सो कभी कभार क्या है कि स्पीड में जा रहा है, कभी कभार तो वॉइस मॉड्यूलेशन सेट करना, हेड मूवमेंट कर रखना, आई मूवमेंट, कितना आंसर देना है। What you speak is knowledge, and when you speak and how you speak is intelligence। तो नॉलेज हो गया, अब इंटेलिजेंस पे काम करना है कि कैसे कन्वर्सेशन रखना है। 3 महीना भी कभी कभार कम पड़ जाए। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जब सितंबर में मेरा रिटर्न का रिजल्ट आ गया था। तो वो चीज देखना पड़ता है। यस, ऑब्वियसली एवरी टाइप ऑफ कैंडिडेट्स अलग अलग होते हैं। जब हम डेडिकेटेड हैं तो हमें टाइम देना पड़ता है। मैं यही इस वजह से बोल रहा हूँ कि मिनिमम 3 मंथ। कुछ ऐसे कैंडिडेट देखो, एवरी टाइम मैं एज ए टीचर मेंटर की हैसियत से देखता हूँ, और मैं ये एक ऐसा ही ऐड और ये नहीं यहाँ कर रहा हूँ और ना मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, सर 1 मॉक ले लो, मेरा अब 10 दिन में है या 15 दिन में। मैं किसी को भी बोलता हूँ, देखो डियर, ये एक तरह से एक कोई मॉक ले लिया वो मायने नहीं रखता है। यदि मैं किसी कैंडिडेट को जानना चाहता हूं तो मुझे टाइम लगता है, मुझे मल्टीपल टाइम उनसे इंटरेक्शन करता हूं और सारी चीजों को। आप सोचोगे कि कोई एक मॉक आपको कर ले और उसमें से आप हो जाओगे, तो नहीं। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप ऑलरेडी बहुत अच्छे कंडीशन में हो, या आपने ऑलरेडी पहले दे रखा है, या किसी और एग्जामिनेशन के संबंध में। जो जैसे आपने बोला कि जो भी आपने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किया, कुछ ऐसे चीजें जो बोर्ड में मिस्टेक्स हो सकते हैं और जिसको हम अभी एज ए प्रिपरेशन के तौर पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, जनरल कुछ 2-4 टिप्स। इंटरव्यू के टाइम, जैसे इंटरव्यू 20-25 मिनट्स तक ही रहता है। मेरे को ये भी चीज़ सुनने में आया है कि किसी कैंडिडेट को बहुत जल्दी इंटरव्यू बोर्ड से निकाल दिए थे कि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में ये मेंशन किया था कि ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है। ये अब पता नहीं रूमर है या क्या है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को नहीं मेंशन करना चाहिए कि ये उनका कौन सा अटेम्प्ट है। और जैसे मेरे डैफ में ये भी मेंशन नहीं था कि मैंने 2 मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, मैंने वो रिमूव कर दिया था, क्योंकि डैफ में ये लिखा था कि हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड। डैफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, मैंने लिखा यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ देन मेंशन। तो इफ का मतलब है कि वो ये पूछ रहे हैं कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे तो मेंशन करो। तो लोग वहां पर अपना कंपनी का भी मेंशन करके आ जा रहे हैं, मैंने मेंशन नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने एज ए ट्यूशन टीचर में पढ़ाता था बच्चों को, तो मैंने वो मेंशन किया। तो पहला मिस्टेक ये नहीं करना कि जो डैफ में है, अगर गलत फिल कर दिया है तो उसको किस तरीके से आंसर को मैनेज करना है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मेरे को इंटरव्यू बोर्ड पूछता कि यार तुमने कहीं काम नहीं किया है, बोलूंगा सर हाँ काम किया है, तो इसमें लिखा क्यों नहीं है। तो मैं वहां पर उनको जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ, सर यूपीएससी ने पूछा ही नहीं एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये चीज़ है, डैफ को कैसे रिकवर करना है। और इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं कि आंसर देते टाइम आंसर से ज्यादा दूर नहीं भाग जाना है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कोई क्वेश्चन आ गया, अरे ये तो मेरे को आता है। ये सबसे डिफिकल्ट चीज इंटरव्यू में है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है। अब दिमाग भागने लगता है कि यार मैं इसमें ये भी बता सकता हूँ, ये भी बता सकता हूँ, ये भी बता सकता हूँ, और आदमी फिर चुप हो जाता है, क्या बताऊँ। जैसे मेरे को सर ने क्वेश्चन पूछा कि टेल मी व्हाट आर योर पॉइंट्स अबाउट द खेलो इंडिया गेम्स। मैं बोला यार इतना इजी, क्योंकि जब सामने इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछता है दैट सेकंड क्या होता है कि जब क्वेश्चन मुंह से निकलना शुरू होता है तो हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली प्रेडिक्ट करने लगता है कि यार ये क्वेश्चन आने वाला है। और जैसे ही क्वेश्चन आता है तो हम लोग जल्दी जल्दी आंसर बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज में क्या है कि ब्रेन इतना फास्ट रन करता है कि जब बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया ना, उसी में आदमी गलत आंसर दे देगा। और मैंने बहुत ही घटिया सा आंसर दिया इतना इजी क्वेश्चन में। तो हो सकता है उसमें 2-3 मार्क्स कटे हो, या सर इट इज वेरी गुड सर, इंटरनेशनल प्रेजेंस सर, दिस दैट। तो मैं वहां पर ब्लैंक हो गया। तो इसीलिए ये चीज भी ध्यान देना है कि ज्यादा जोश में नहीं आ जाना। 4-5 पॉइंट आ रहे हैं, फोकस विच पॉइंट ही इज आस्किंग। if he is asking about, let's say he is asking about private militarization, okay, he is specifically talking about tactical bombs, then you should only talk about tactical bombs. Don't mention private militarization and drone technologies and missile systems. Just answer what he specifically। तो जो स्पेसिफिसिटी है वो भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो स्पेसिफिक आंसर पूछ रहे हैं, 1-2 पॉइंट्स के बीच में वो टोक देंगे, पूरा आंसर देने का टाइम मिलेगा नहीं। तो
एक जो आंसर मुंह से निकलने वाला है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, है ना। ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करना है, अभी मैं आप लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग आंसर को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सिंपल आंसर चाहिए। यस, दैट आई से टू कैंडिडेट ना कि आप में ये क्षमता होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक है उसको 30 सेकेंड में मैक्सिमम आप एक्सप्लेन कर पाओ, क्योंकि उससे ज्यादा वो लोग जनरली टाइम ही नहीं देते हैं। दैट्स व्हाई आई से ना कि कोई भी टर्म और टॉपिक आपने लिखा है अपने डीएफ में, तो आपके पास क्षमता हो कि वो 30 सेकेंड में आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। सो वन क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो आपने पूरी इंटरव्यू इंग्लिश में दी? Yes, sir. My complete interview was in English. Even when he was trying to talk in Hindi and he was trying to make a joke, even in between, I'm a kind of a funny person. So in between, I even made two jokes. So everyone started laughing, but even those jokes were in English. So ओके, everything was in English. एनीवे, सो चलो ठीक है, आपने इंग्लिश में दिया, लेकिन आपको जैसे मेरा सबमिशन है कि लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको लगता है कि शायद वो यदि हिंदी में जोक किए हैं तो आपको हिंदी में रिप्लाई करना चाहिए था, ऐसा आपको लगता है? देखिए सर, हिंदी जब आप बोलते हैं ना, जैसे आप और मैं जो हिंदी बोल रहे हैं वो हिंदी नहीं है, हम्म। वो एक नॉर्मल लैंग्वेज है। अच्छी हिंदी अलग रहती है। यस। जो हम लोग थोड़ा सा संस्कृत, तो उस हिंदी में जैसे जिस हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ उस हिंदी में बात करने से मार्क्स नहीं मिलने वाला। जैसे इंग्लिश रहता है, जैसे आपकी इंग्लिश और मेरी इंग्लिश में डिफरेंस है, ऑफ द बिकॉज ऑफ द बर्थ प्लेस, राइट। सो हिंदी में अगर बात करना है तो प्योर हिंदी में बात करिए, क्योंकि इंग्लिश का वैल्यू है। क्योंकि अगर आप इमेजिन करिए कि कोई बंदा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वो आईटी कंपनी में एंटर कर रहा है और हिंदी में बात, एक बिहारी एक्सेंट में बात करना शुरू करे, तो इंसान उसको जज करने लगता है, यार इसको कुछ नहीं आता। और कोई इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलने लगे, ओहो दिस गाय इज, आई थिंक दिस गाय इज स्मार्ट, राइट। सो इस तरीके से एक इमेज बन जाती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश आपकी बहुत खराब है, मतलब अगर आपको बोलना नहीं जाता, इट इज नॉट अबाउट एक्सेंट, इट इज अबाउट दैट यू आर एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस एंड यू आर एबल टू गिव योर आंसर्स करेक्टली इन इंग्लिश, देन इंग्लिश पे जाओ। लेकिन हिंदी में भी अगर आप जाएंगे तो 130 ला सकते हैं, लेकिन वो हिंदी अच्छी हिंदी होनी चाहिए, यस, है ना, स्लैंग लैंग्वेज। बट स्लाइटली आई विल डिफर विद यू कि देखो, जो आपने बोला ना कि हिंदी जो ये है, एक्चुअल में आज के डेट में जो मैं समझ रहा हूँ और जो मेरे और कैंडिडेट्स है जिन्होंने हिंदी में दिया, तो संस्कृताइज्ड हिंदी का उतना जरूरत नहीं है। इस वजह से देखो क्या है ना कि संस्कृताइज्ड हिंदी बहुत डिफिकल्ट है। आई रिमेम्बर हाँ। वंस जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू जब एक ऐसा टाइम चला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हिंदी में प्रॉपर किया जाए और भाषा सारे, तो उन्होंने बोला कि जब मैं खुद जो भी है मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और सारी चीजों को, बट प्योर हिंदी जब बोलने लगता हूँ या लिखना तो ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। एनीवे देखो, भाषा का मेरा ओपिनियन है कि लैंग्वेज वो बोलो जिसमें हम सिंपल वे में समझा सकें, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो हम समझ सकें और आंसर जो है वो दे सकें। ओके आप। जस्ट इट शुड बी फॉर्मल, राइट, बस थोड़ा सा फॉर्मल रहे यस, हिंदी हो हाँ, तो। ऑब्वियसली वो देखो वहाँ एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ऐसा नहीं है कि हम अपने फ्रेंड्स के बीच में बोल रहे हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। वहाँ वो स्ट्रक्चर्ड वे में, और ये हमारे करियर का प्रश्न है। शायद 5 more marks एंड आई बिलीव 5 less marks and my whole year's work will be gone. डाउट, यस। Okay, so thank you Asutosh for this conversation. I will like to communicate more if needed and all, and some aspects or some dimensions I did not cover. So in future, I will like to communicate. Okay. So श्योर thank you सर। so much. और all who will watch, उनको देखो, इनसे सीखो. Every person is having something to share. Okay. Thank you. सर आई होप 5% भी आज कोई सीख के जाए तो उसको कोई एक बंदा दो बंदा भी सिलेक्शन ले मेरी वजह से, तो आई विल बी मोर हैप्पी।